جو صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے 2020 اور 21 کی بجٹ پہ بات کرنے کا. میں سب سے پہلے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکلز، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پولیس ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ فرنٹ لائن کے اوپر اس وبا سے لڑ رہے ہیں اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت اور 1,80,000 جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ جلدی ان کو صحت یاب ہو جائے. یہ جو بجٹ جو ہے اس میں جو عدد شمار دکھائے گئے ہیں وہ تقریباً صحیح نہیں ہے. یہ پورا جو پہلے جو عدد شمار جو تھے وہ 7.2 ٹریلین کی بجٹ ہے اور اس میں ڈیفیسٹ جو ہے 3.195 ہے اور آئی ایم ایف کا دباؤ تھا. اس کی وجہ سے نہ 10% سیلریز میں اضافہ ہوا نہ پینشن میں ان کو اضافہ ہوا. وہی جبکہ جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے جس کو تقریباً 22 مہینے ہو چکے ہیں اور اس کورونا کو آئے ہوئے تقریباً 140 دن ہو چکے ہیں. ہنی مون پیریڈ بھی ختم ہو چکا ہے اور ابھی جو ہم جو دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ الائڈس تھے وہ بھی اب چھوڑتے جا رہے ہیں اور لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کافی جو آپ کے الائڈس جو تھے وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے. جو سیاست ہے وہ پوری کی پوری جھوٹ کے اوپر ہے. آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو بجٹ بنانے کا کوئی یارڈ اسٹک تو آپ لوگوں نے بنایا ہوگا نا. آپ نے یہ بجٹ جو بنایا وہ یارڈ اسٹک یہ تو آپ نے ٹوٹلی جو ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بنایا ہے. آئی ایم ایف جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے وائسرائے یہاں پر مقرر کیے اور وہ ٹیکسز وصول کرتے تھے. اسی طرح جو ہے ابھی آئی ایم ایف نے آپ لوگوں نے ان سے قرضہ لیا $6 بلین اور وہ یہاں پر آ گئے. اب وہ اپنی مرضی سے اپنے وائسرائے کے تھرو جو ہے وہ بجٹ بناتے ہیں اور جو آپ کے بابو اور یہاں کے کلارک جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. آپ کا اس میں ان پٹ ہے کیا؟ آپ بتائیں کوئی بھی ان پٹ. آپ کا موٹو تھا نا, آپ لوگوں نے خود ہی کہا تھا بجٹ اس میں اقبال پارک میں آپ کے چیئرمین نے عمران خان نے آپ کے وزیر اعظم صاحب نے 2014 میں کہ آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک قرضہ نہیں دے پاکستان کو, اگر قرضہ دیں گے تو ہم واپس نہیں کریں. اور آج وہی وزیر اعظم وہی عمران خان آئی ایم ایف کے آگے لیٹ جاتا ہے, سب بینکوں کے آگے لیٹ جاتا ہے, چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو ان کو آگے لیٹ جاتا ہے اور ان سے قرضہ لیتا ہے. اور پہلے کہتا تھا کہ نہیں ہم لوگ قرضہ نہیں لیں گے. کہاں گئے وہ وعدے, کہاں گئے وہ اقرار؟ کچھ نہیں. ہر وقت یہی آپ لوگوں کا موٹو تھا نا, آپ لوگوں کا موٹو تھا اور جو آپ نے مینیفیسٹو بھی دیا کہ نیا پاکستان ہم لوگ بنائیں گے اور اس تبدیلی لائیں گے پاکستان میں اور مدینہ کی ریاست بنائیں گے. اور اس میں جو ہے آپ نے 11 نکات دیے تھے اور وہ 11 نکات کیا تھے؟ پاکستانی
यकसा निज़ाम तालीम, हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस, करप्शन का खात्मा, टैक्स कल्चर का क़याम, खुद इंसारी, रोजगार के मौके, फेडरेशन का इस्तेकाम, जुनूबी पंजाब सूबे का क़याम, पुलिस इस्लाहात, टूरिज्म की तरक्की और ज़राई इमरजेंसी के जरिए शोबे की तरक्की। ये थे आपके 11 नुकात जिसके ऊपर आपने पूरी इलेक्शन लड़ी, लोगों से वादे झूठे किए और उनसे आप लोगों ने वोट लिए। और वोट लेने के बाद जो आपका पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है, 2.5 करोड़ आप लोगों ने यही वादा किया था ना अवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, कि 2.5 करोड़ जो बाहर हैं उनको तालीम के दायरे में लेके आएंगे। कहां गए वो? कोई मुझे बताएगा कि वो 2.5 लाख बच्चे जो है आप लोगों ने वापस लिए? आपने स्कूलों में उनको दाखिला दी? नहीं। या उनके बजट के लिए पैसा मखसूस किया? नहीं। और उसके और भी आप लोगों ने कम कर दिया। उसके बाद जो है हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ, अब इस पे हम लोग क्या बात करें? आप लोग टोटली कंफ्यूज। इस वक्त जो है हेल्थ के लिए आपने अगला जो आपका मिनिस्टर जो था आमिर मोहम्मद कियानी साहब, उसने दवाइयों को इतना बढ़ा दिया कि एक गरीब आदमी जो वो दवाइयां भी नहीं खरीद सकता, जो 20 रुपए की दवाई थी वो 40 रुपए की होगी, जो 50 की थी वो 100 की होगी, और ऊपर से आपने पेंशन भी नहीं बढ़ाई। अब जो सीनियर सिटीजन थे वो कैसे खरीदेंगे? वो कहां से खरीदेंगे? और इस वबा के माहौल में उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खरीद सके? नहीं। उसके बाद फिर आपने ये कोविड जो है 19 आया, जिसको आप लोग कहते हैं कि 19 पॉइंट्स। भाई कोविड जो है टाउन है, वो कोई बला नहीं है। आपने उसको जो पॉइंट्स बना दिया कि इतने पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं, ये तो आप लोगों की अकल है। मकसद सिर्फ ये है, पाकिस्तान इस वक्त इस बहरान से गुजर रहा है। आपका सिंध में जो है एक उन लोगों ने काम शुरू किया और अच्छा काम शुरू किया, मगर उसके ऊपर भी आप लोगों को ये हुआ कि नहीं, वो काम सही नहीं करे। बिलावल साहब ने यहां पर बैठ के कहा कि हम आपसे ताउन करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, मगर आपने इस कान से सुन के और इस कान से निकाल दिया। अब आपके इमरान खान कभी इसको लिटिल फ्लू कहते हैं, कभी छोटा फ्लू कहते हैं, कभी बड़ा फ्लू कहते हैं, और जिस तरह जो है ब्राजील का प्रेसिडेंट, उसने वहां पर तबाही मचा दी है, यहां पर भी इस किस्म की हो रही है। इसको आप लोग इस तरह सीरियस ले। कैपेसिटी जो है, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है पूरे जो है सिंध में जो 12,000 है, यहां पर जितने भी तीनों सूबों को मिलाएंगे तो वो 12,000 से भी कम होगी। यहां पर जो 21 करोड़ जो 65 लाख की आबादी है, और आप उसको कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, जबकि आपको तरक्याती का जब वो तरक्याती जो होती है तो उसका फिर आप देते हैं सिंगापुर के साथ करते हैं। आप सिंगापुर के साथ करें ना, इसको कंपेयर करें ना। इंडिया तो जो है एक तकरीबन 1.25 बिलियन है इसकी आबादी, उसके साथ रकबा भी बड़ा है तो उसका मसला भी बड़ा होगा। आप कंपेयर करें ना। यहां पर आप लोग कंफ्यूज क्यों है? आप क्लियर होकर बताएं कि भाई इसको हम लोग इस तरह कवर करेंगे। आपकी वजह से आवाम भी कंफ्यूज हो रही है। जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि वजीर आजम जो है हमें ये बताते हैं, आप लोग इस तरह बात करते हैं, आप लोग गलत बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस तरह बातें नहीं करें, आप सही करें। इस वक्त जो है हमारी 3 हॉस्पिटल आप लोग उठा ली। अब NICVD जो है, जिसके तकरीबन जो है सैटेलाइट्स जो है वो 10 है, टोटल जो है NICVD के साथ वो 11 है। 10.5 अरब रुपए उसके लिए मखसूस किए गए थे। 12,000 उसमें हार्ट सर्जरीज हो चुकी है, एंजियोप्लास्टिक हो चुकी मुफ्त में। एक हार्ट सर्जरी की कीमत कितनी है? 5-5, 6 कोई अफोर्ड कर सकता है? अच्छा भला आदमी अफोर्ड नहीं कर, वहां पर गरीब लोग अफोर्ड उनकी मुफ्त में होती है। आपने वो भी ले लिया। अब उसके लिए भी आपने पैसा जो रखा है वो टोटली जो रखा है वो 13 अरब पे रखा है, जिसमें एक जो लाहौर की भी है और 3 वहां की है। आप फैसले करें, सही करें। उसके बाद फिर आप जो आते हैं, जो मेन जो बात जो जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और वो है
ये ज़रूरी इस्लाहात, ज़रूरी इमरजेंसी के जरिए जो है शोबे की तरक्की। अब इसमें जो ज़रूरी जो आपने पैसे जो रखे हैं और इसमें वो हर एक को पता है कि आपने क्या रखा है। ये 75% जो है हमारे लोग जो है इनसे जो है ज़राअत से मुंसलिक है। टोटल जो आबादी पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन 8 करोड़ हेक्टर लैंड है, उसमें तकरीबन जिसके ऊपर बारानी 37 मिलियन जो है उसके ऊपर हम लोग अपना एग्रीकल्चर जो है उगाते हैं। एग्रीकल्चर की हालत ये है कि उसके में जो है आपका जो है जीडीपी जो है जमा हुआ है वो तकरीबन 18.5 हम लोग जमा करते हैं उसमें, और अब भी पहले जो था वो 24.8 था, उसको अब हम लोगों ने गिरते हुए देखा है। उसमें यहाँ तकरीबन इस दफा जो कॉटन जो गिरी है वो 1 मिलियन टन गिरी है, शुगर कैन जो है 13 मिलियन टन गिरी है, राइस जो है 3 लाख टन गिरी है। ये शॉर्टफॉल हुआ है इसके अंदर अपने एग्रीकल्चर के ऊपर जो है। मगर एग्रीकल्चर जो अब रिड्यूस हुआ है, पहले 38.8 था, अब उसको रिड्यूस होकर जो है 2.6 तक जगह वो रिड्यूस हुआ है। ऊपर से टिड्डी दिल आ गया है। अब टिड्डी दिल जो है यहां पर 1 साल पहले आसिफ साहब ने कहा कि भाई टिड्डी दिल आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आपको ताज्जुब होएगा, सिंध के अंदर, ये कल की मैं बात बता रहा हूं, ये जो आपके जो जहाज स्प्रे है ना, वो सिर्फ सॉरी सर स्प्रे जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कितने 20 मिनट 1 साल के अंदर, और 400 एकड़ पे सिर्फ स्प्रे हुआ है। और वहां की जो लोकल जो सिंध गवर्नमेंट है उसने 98 जो है उसके जो है एग्रो बेस्ड जो है जो ऑफिसर्स है वो लोग स्प्रे कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर। गुम हो गई है, गाड़ियां इधर चली गई। आप लोग खुद जो है आपका जहाज एक है जो वहां पर खड़ा हो गया, वो 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। और वो कहां पर हुआ? वो सिर्फ खैरपुर में हुआ, जहां पर लोग। थैंक यू जी। तो थोड़ी सी बात करने जैसे आप टाइम हमें थोड़ा सा मिलना चाहिए, वाइंड अप कर लें तो थोड़ा सा बात करने जैसे हम आते थे अभी उसके ऊपर जो है खास करके जो है सिंध के ऊपर जो, और उसके बाद फिर आप पुलिस को कर दे। अब सिंध में जो सबसे जो पहले जो आपने कहा कि खास करे सूबों का जो मसला जो है, और सूबे जिसके ऊपर जो है हम लोग जो है आजकल हाँ नहीं सब थैंक यू। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर वो कर लेता हूं। फेडरेशन का इस्तेकाम, फेडरेशन इस्तेकाम बहुत एक नाजुक मसला है। देखिए फेडरेशन ये पाकिस्तान जो बना ये 1940 का आप रेजोल्यूशन पढ़े, उसमें फेडरेशन का पूरे का पूरा लफ्ज इस्तेमाल है कि पावर विल बी डेलीगेट टू द फेडरेशंस। उसके बाद फिर 1971 से पहले 6 नुकात उसमें भी फेडरेशन का जिक्र आया। फिर एमआरडी मूवमेंट उसमें भी फेडरेशन का जिक्र आया। ठीक है, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा तहनास करके खत्म कर दिया। आसिफ साहब ने उसको जो है बिल्कुल उसमें 18 अमेंडमेंट करके पोजिशन लेके आए। इस वक्त जो है 18 अमेंडमेंट को छेड़ना बहुत बड़ा मसला होएगा। 4 सूबों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान ने 4 सूबों को नहीं बनाया है। इसलिए आप इसको 18 अमेंडमेंट को छेड़छाड़ नहीं करें। छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान बहुत होगा। तो फिर आप हम लोग ये समझते हैं फिर जो है नहीं फिर हम लोग ये समझते हैं कि अपना इमरान खान जो वो गौरबचुप होता जा रहा है, वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। जिसने उसने रशिया को नुकसान दिया था, ये पाकिस्तान को नुकसान देगा। ये आप तरह न करें, आप लोगों के लिए। राशिद शफीक साहब जी।